Hello everyone, today we will be discussing a topic that is acidulated phosphate fluoride, which is also known as APF, and it is a very important 5-mark question as well as important question for both your NEET PG exams as well as Viva exams which happen in your college. So first let's quickly discuss how important it is for a 5-mark question, and meanwhile I'll be also giving you and marking you important points which are important for your Viva. So what is the history? How it evolved? First of all, we need to know acidulated phosphate fluoride is also known as APF, which is its short form, and is also known as Brudewald solution. Now, one of the important things which you have to keep in mind is its concentration, its pH and its ppm. So APF is used at a concentration of 1.23%. ppm is 12300 ppm and the pH is 3.2 pH. This question is important in your MCQs, Vivas as well as NEET PG. Then next point to remember is it was emerged from the in vitro investigation by Bibby in 1947. You have to keep this name of the scientist and 1947 this year in your mind always, as can be given in university questions and maybe not in NEET MDS but maybe in the university exams. Then you have to keep in mind why is it called Brudewald solution, because it was given by the scientist Brudewald and his co-workers, who after a number of in vitro studies reported in 1963 that phosphate containing fluoride has maximum beneficial effects. Therefore it is called Brudewald solution, and because fluoride contains phosphate, that is why it is known as acidulated phosphate fluoride. Is it clear? Now we will move on to the next heading which you will have to write in your university exam. That is how it is prepared, method of preparation. What you will do is you will take 1 liter of 0.1 molar orthophosphoric acid and you will dissolve 20 grams of sodium fluoride in it. Now to this you will add 50% of hydrofluoric acid so as to you can adjust the pH at 3. We had read earlier its pH is acidic. So to maintain acidic pH, 50% hydrofluoric acid is added, and after adding this, one, the pH will become acidic, second, its concentration will become 1.23%. Now the Brudewald solution formed contains 2% sodium fluoride in 0.1 molar orthophosphoric acid. तो हमने कैसे बनाया है इसे? हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड करा. इसके बाद हम इसमें 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड ऐड करेंगे. इसके बाद 50% ऑफ हाइड्रोफ्लोराइड एसिड ऐड करेंगे, जिसकी वजह से pH ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 3 and its concentration becomes 1.23%. This is how 2% sodium fluoride in 0.1 molar orthophosphoric acid is formed. Now moving on to the next topic, next heading in this topic, that is technique of application. This is very important, as this is the main body of the question that you will form. This is the thing which examiner wants you to mention properly, because these are the steps of how you will apply, how you will do it clinically. First step is we have to do a thorough prophylaxis and isolate a quadrant with the cotton balls. What you will, cotton rolls, you will make cotton rolls और आप उसको पेशेंट के वेस्टिब्यूल में, टंग स्पेस में, लिंगुअल वेस्टिब्यूल में, बक्कल वेस्टिब्यूल में, हर जगह उसको प्लेस कर दोगे. बट बिफोर यू हैव टू डू ओरल प्रोफाइलैक्सिस, दैट मीन्स proper thorough cleaning of the oral cavity, be it scaling, root planing, whatever you do, but it has to be done. सो ओरल प्रोफाइलैक्सिस करेंगे, फिर अच्छे से हमने सपोज़ करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले हमें APF को अप्लाई करना है, तो हम उसको कॉटन रोल से आइसोलेट करेंगे बाय प्लेसिंग कॉटन रोल्स इन द बक्कल वेस्टिब्यूल एंड क्लीनिंग द टूथ सर्फेसेस. नाउ APF solution is placed continuously and repeatedly applied with cotton applicator. कॉटन एप्लीकेटर की हेल्प से हम APF solution को कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे. जैसे अगर ये हमारा टूथ सरफेस है तो हम इस पर APF सॉल्यूशन को कॉटन एप्लीकेटर की हेल्प से
रिपीटेडली लगाते रहेंगे कंटिन्यूसली। अब हमें टूथ को मॉइस्ट रखना है फॉर 4 मिनट्स, मतलब आपने अप्लाई कर दिया है टूथ पे, you have applied APF and you will leave it for 4 minutes. After 4 minutes you have applied it for 4 minutes. Now you will take a floss through each interproximal embrasure to ensure the wetting of the surfaces. अब आप proximal surface पे कैसे लगाएंगे? Proximal surface पे लगाने के लिए you see you have this tooth structure. Okay, now you have to apply in the proximal area. So what you will do is you will take a floss and apply APF on it, and then you will move the floss in between it. So this is how the proximal surface will also be will get coated with APF. Now what you will do, repeat the procedure for remaining quadrants. This is we have done in first quadrant. Now to do it in other quadrants you will further repeat the same process. Now here this is important line, this is patient instruction which you have to give. The patient should not eat. patient को आधे घंटे तक ना तो कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना ही उसको अपना माउथ रिंस करना है. Now there is one clause in it or one facility we can say that APF gel can be used by self application procedure and children can be trained for this. मतलब ये तो हमने solution लगाया, solution is a little in the form is a liquid which is applied, but अगर हम जेल फॉर्म में दे रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर हम बच्चों को सिखा देंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले हमने थॉरो प्रोफाइलैक्सिस किया, जिस क्वाड्रेंट में हमें अप्लाई करना है उसको हमने कॉटन रोल से आइसोलेट किया. उसके बाद कॉटन एप्लीकेटर के हेल्प से टूथ सरफेस पे हमने उसको लगाया. 4 मिनट्स के लिए हमें टीथ को मॉइस्ट रखना है. फिर इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज़ में विद द हेल्प ऑफ फ्लॉस लगाएंगे हम और बाद में उसको वेट करने के लिए रखेंगे फॉर 4 मिनट्स एंड 30 मिनट्स तक पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस है नॉट टू ईट, ड्रिंक और रिंस, एंड इसमें सेल्फ एप्लीकेशन भी पॉसिबल है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पर ईयर. सी APF एक ऐसा बहुत ज़्यादा यूज्ड है और बहुत कॉमनली अवेलेबल है क्लिनिक्स में, इसलिए और इसका एक्शन मोड ऑफ एक्शन इज़ क्वाइट गुड एंड इफेक्टिव दैन अदर टॉपिकल फ्लोराइड्स लाइक सोडियम फ्लोराइड से भी अच्छा है, स्टैनस फ्लोराइड से भी अच्छा है. इसलिए इसको हमें ओनली सेमी एनुअल दैट मीन्स 2 times a year or 4 times a year, not more than that. Okay, 2 times a year semi annually or quarterly, like 4 after every 3 months you can apply it. Next is mechanism of action. Here in mechanism of action we see that tooth enamel acquires large amount of fluoride with penetration when penetrated with dilute phosphoric acid before being exposed to fluoride solution. क्या हो रहा है? ये आपका टूथ enamel है, ठीक है. इसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोराइड ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है. जब हमने डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड लगाने से पहले जब हमने फ्लोराइड सॉल्यूशन तो अभी नहीं लगाया है, हमने अभी डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड लगाया तो ऑलरेडी एनामल के अंदर फ्लोराइड का एप्लीकेशन पेनिट्रेशन हो चुका है. इसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन एंड श्रिंकेज हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का एंड फॉर्मेशन हो जाएगा DCPD का, दैट इज़ डाई कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट. दैट मीन्स दिस इज़ योर एनामल. आपने यहाँ पे डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड लगाया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा फ्लोराइड का पेनिट्रेशन हो गया, सब जगह फ्लोराइड है, ठीक है. जिसकी वजह से अब जब आप फ्लोराइड सॉल्यूशन लगाओगे उससे पहले ही इसके अंदर फ्लोराइड घुस चुका है. अब क्या होगा, इस प्रोसेस की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है और श्रिंकेज हो गई है यहाँ पे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की, क्योंकि अब हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स यहाँ पे कम हो गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे DCPD का फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स डाई कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया है. अब क्या होगा, अब जो ये DCPD का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला जो DCPD होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोराइड से. अब वहाँ पे क्योंकि एक्सेस फ्लोराइड था, अभी हमने देखा जब हमने डाइल्यूट फ्लोरो एपेटाइट एसिड लगाया तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड आ गया जो कि अब इस के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा
फ्लोरोएपेटाइट. Fluoroapatite. Amount and depth of fluoride deposited as FAP, fluoroapatite, depends on the amount and depth of DCPD. टूथ में जितनी डेप्थ तक DCPD होगा उतनी ही डेप्थ पे FAP का फॉर्मेशन होगा. FAP मतलब फ्लोरोएपेटाइट. जितना डीप DCPD होगा उतना ही डीप FAP होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा DCPD उतना ज़्यादा हमारा FAP. जितना ज़्यादा DCPD उतना ज़्यादा FAP, क्योंकि DCPD ही होता है जो कि हमारा फ्लोराइड से रिएक्ट करता है. Since the conversion of whole DCPD formed into FAP, continuous supply of fluoride is required. क्योंकि DCPD से FAP बनाने के लिए हमें continuous fluoride की रिक्वायरमेंट होती है, तो APF हैज़ टू बी अप्लाइड एवरी 30 सेकेंड्स एंड टीथ आर केप्ट मॉइस्ट. अभी हमने पीछे टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में पढ़ा था कि हमें टूथ को मॉइस्ट रखना होता है फॉर 4 मिनट्स. तो क्यों रखना होता है? इसीलिए रखना होता है ताकि हमें कंटिन्यूस फ्लोराइड की सप्लाई मिल सके, और जो उस सप्लाई की वजह से वो DCPD से रिएक्ट कर सके और FAP बना सके. इसलिए हम एवरी 30 सेकेंड्स उसको अप्लाई करते हैं एंड 4 मिनट्स तक उसको हमें मॉइस्ट रखना होता है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस. तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज़ चीप, लाइक दैट इज़ इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ईजिली प्रिपेयर हो जाता है. स्टेबल विद अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ व्हेन स्टोर्ड इन ओपेक प्लास्टिक बॉटल. APF को हमेशा ओपेक एंड प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करेंगे. 50% मोर इफेक्टिव देन NF एज आई मैंशनड अर्लियर. ऑल्सो कैन बी सेल्फ अप्लाइड. अगर ये जेल की फॉर्म में है हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर comfort, and it is applied only 2 times a year and is suited for most dental office routines. क्योंकि हमने सेमी एनुअल एप्लीकेशन में तो 2 बार में भी काम चल जाता है और क्वार्टरली भी कर सकते हैं. Disadvantages. So it has only few disadvantages, like the teeth has to be kept moist for 4 minutes. 4 minutes क्यों रखते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा DCPD जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा हमें फ्लोराइड सप्लाई चाहिए होगी, क्योंकि DCPD ज़्यादा होगा फ्लोराइड ज़्यादा चाहिए होगा. फ्लोराइड ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा फ्लोरोएपेटाइट बनेगा, जिसकी वजह से हमारा टूथ ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा. इसलिए हमें 4 मिनट्स के लिए अप्लाई. इसका टेस्ट एसिडिक, सार, बिटर होता है जो बच्चों को सूटेबल नहीं होता है. इसको अगर हम ग्लास कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ये ग्लास को एच कर देता है. एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करेंगे टू कॉम्पोजिट और पोर्सिलिन तो रिजल्ट करेगा इन लॉस ऑफ सरफेस मटेरियल एंड एस्थेटिक अपीयरेंस. बाय चांस किसी बच्चे के कैविटीज़ हो रखी हैं और उसको ऑलरेडी रेस्टोरेशन हो रखी है बाया कॉम्पोजिट और पोर्सलिन क्राउन से, अगर उस पर एक्सपोजर हो गया तो उसका एस्थेटिक लॉस हो सकता है क्योंकि सरफेस मटेरियल ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट APF. नाउ let's just go through what all we have to write and what all we have to keep in mind. APF stands for acidulated phosphate fluoride, wherein it is also known as APF or Brudewald solution, used at a concentration of 1.23%. 12300 ppm is its fluoride concentration and pH is 3.2. Now, important things from exam point of view for your university or professional exams is to keep in mind. किसने दिया था? बेबी ने दिया था 1947 में, और ब्रूडेवाल्ड और उसके को-वर्कर्स ने एक्सपेरिमेंट करा था और ये कहा था कि फॉस्फेट कंटेनिंग फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं. फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करना है? एक कंटेनर में पहले हम 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेंगे, उसमें हम 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड ऐड करेंगे और फिर उसमें 50% हाइड्रोफ्लोराइड एसिड डालेंगे जो कि उसके pH को रेगुलेट करेगा to 3 एंड फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन को ले आएगा at 1.23%. दिस इज़ हाउ ब्रूडेवाल्ड सोल्यूशन इज़ फॉर्म. नाउ टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे सबसे पहले हमें थरो ओरल प्रोफाइलैक्सिस करना है. फिर हम उस क्वाड्रेंट को कॉटन रोल से आइसोलेट करेंगे. वहाँ पे रिपीटेडली कॉटन एप्लीकेटर की हेल्प से APF सोल्यूशन को अप्लाई करेंगे और उसको 4 मिनट्स के लिए मॉइस्ट रखेंगे. इंटरप्रॉक्सिमल एम्ब्रेजर्स में लगाने के लिए वी विल यूज़ अ फ्लॉस, और फिर ऐसे ही हम बाकी क्वाड्रेंट्स के लिए करेंगे.
पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है, रिंस नहीं करना है फॉर 30 मिनट्स। अगर ये जेल फॉर्म में है तो हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो खुद अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पर ईयर, दैट इज़ सेमी एनुअल और क्वार्टरली, मतलब साल में या तो 2 बार लगा लो या 4 बार लगवा लो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। नेक्स्ट वी हैव इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है कि इनामल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा फ्लोराइड पेनिट्रेट हो जाता है जब हम डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड लगाते हैं। अब क्या होगा, डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा किसका, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का, और फॉर्मेशन हो जाएगा DCPD का। अब DCPD सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टू फ्लोराइड। अब जब हम इसमें फ्लोराइड सॉल्यूशन लगाएंगे तो DCPD फ्लोराइड से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा फ्लोरोएपेटाइट, दैट इज़ FAP। जितना ज़्यादा डीप DCPD का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा ही डीप FAP का फॉर्मेशन होगा। तो DCPD को रिएक्ट करने के लिए फ्लोराइड चाहिए, जितना ज़्यादा फ्लोराइड मिलेगा उतना ज़्यादा FAP चाहिए। तो इसलिए हम फ्लोराइड को 4 मिनट्स के लिए अप्लाई करके रखते हैं, मॉइस्ट करते हैं और एवरी 30 सेकेंड्स उसको अप्लाई करते हैं ताकि फ्लोराइड सप्लाई चलती रहे। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस, दैट इज़ इट इज़ चीप, दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ईजिली प्रिपेयर हो जाता है, शेल्फ लाइफ इसकी लॉन्ग होती है। अगर हम इसको ओपेक प्लास्टिक बॉटल्स में रखेंगे तो सोडियम फ्लोराइड से 50% ज़्यादा इफेक्टिव है। सेल्फ एप्लीकेशन पॉसिबल है इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जेल्स, एंड 2 times a year application is sufficient for a normal routine case, and it is mostly used in dental office routines. Lastly we'll be talking about disadvantages, which is थोड़ा वर्किंग टाइम ज़्यादा है, 4 मिनट्स आपको अप्लाई करके रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए टेस्ट थोड़ा मैटर करता है, तो इट इज़ एसिडिक, सार एंड बिटर, विच बिकम्स इट्स डिसएडवांटेज। अगर आप इसको ग्लास बॉटल में स्टोर करोगे तो ये एच कर देगा ग्लास को, एंड अगर बाई चांस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ योर रेस्टोरेशंस लाइक कॉम्पोजिट और पोर्सिलिन, इट विल कॉज अनएस्थेटिक अपीयरेंस बिकॉज सर्फेस मटेरियल्स को ये लॉस कर देता है। So that's all for APF. Thank you and stay tuned for more tips with quick tips.